قرآن کو سمجھنے کے لیے اعراب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اعراب ہوتا کیا ہے، اس کے کتنے ٹائپس ہیں اور اس کے کتنے فائدے ہیں، سب انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 10 شروع ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو آج میں نے آپ کو 30 پارے کی سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی 7 آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی عزیز اسم کے چوتھے اور آخری پہلو کو تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ان آیت کے حوالے سے سب سے پہلے ہم ان آیت کو اس میں جو اسما موجود ہیں، اس آیت میں جو اسما موجود ہیں اس کو ہم پہلے چیک کر لیتے ہیں، اپنے جو ابھی تک کے جو ٹاپکس ہمارے ہو گئے ہیں اس ٹاپک کے لحاظ سے۔ ہم لوگ کیا پڑھے تھے؟ جنس، عدد، وسعت کے اعتبار سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ سب سے پہلے آپ ان آیت میں اسما کو پہچانیں گے۔ اسم کو پہچاننے کی آپ کو میں نے 3 بنیادی علاماتیں سمجھائی ہیں، آپ کو یاد ہے نا؟ 3 بنیادی علامتیں کیا ہیں؟ کسی بھی اسم کے آخر میں گولتا آتا ہے، ٹھیک ہے، اور آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر ہوتا ہے یعنی تنوین ہوتا ہے، یا پھر شروع میں الف لام یہ ہوتا ہے۔ یہ اگر آ جائیں، یہ ان کی علامات ہیں، اگر یہ آ جائے یہ اسم کی پہچان ہو گئی ہے نا۔ تو اب یہ سورہ غاشیہ کو اب ہم دیکھتے ہیں، جو 7 آیات آپ میں یہاں پر ہے۔ تو ان آیات میں کتنے اسم ہیں اس کو اب ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا دیکھیں، هل اتاک حدیث الغاشیہ، اس میں کیا ہے؟ اس میں گولتا ہے، ٹھیک ہے، گولتا یہاں پر موجود ہے، یہ آپ کو اسم معلوم ہو گیا ہے نا۔ اور وجوہ میں ہے خاشعۃ، یہاں بھی عاملۃ ناصبۃ ہے نا، نارن حامیۃ آنیۃ اور طعام الا من ضریع اور من جوع، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ ابھی کہیں پر 2 زبر ہے، کہیں 2 زیر ہے، یہاں دیکھیں یہاں 2 زیر ہے، یہاں 2 پیش ہے، یہاں 2 زیر ہے، یہاں 2 زبر ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں بھی 2 زبر ہے 2 زیر، مطلب کہ یہاں پر نظر آ رہا ہے آخر میں تنوین۔ تو اس کا مطلب یہ جتنے بھی الفاظ آپ کے سامنے ہیں یہ کیا ہے؟ تنوین کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ سارے کے سارے اسم ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ایک لفظ کو آپ بغور دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو اسم کی جو 2 علامتیں یہاں پر آپ کے سامنے آ گئی، گولتا مل گیا آپ کو، تنوین مل گیا، دونوں یہاں پر آپ کو مل گئے، ایک الف لام بھی آ گیا ہے نا۔ تو یہ آپ اسم کی پہچان کر چکے۔ اب ان 7 آیت میں جو اسما ہم نے پہچانے، ان کے علاوہ بھی کچھ اسما ایسے ہیں جو ابھی تک ہم نے اسم کی 3 علامتیں کے علاوہ بھی اور دوسری علامتیں موجود ہیں، یعنی ان 3 علامتوں کی بنیاد پر اس اسما کو پہچاننے کے ہم نے ابھی تک کے جو لیکچرز ہیں اس میں ہم ان 3 علامتوں کے ذریعے آپ پہچاننے کے قابل ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ تعالی عزیز جیسے جیسے ہم آگے جاتے جائیں گے ہم باقی علامات کے اعتبار سے بھی ہم اسم کو پہچان سکیں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہ تمام اسما سورۃ الغاشیہ سے ہم الگ کیے گئے، الگ کیے نا۔ ابھی تو ہم نے آپ کو نا ابھی ایک ٹیبل بتاتے ہیں، ابھی یہاں پر ایک ٹیبل ہم نے رکھا ہوا ہے، اس ٹیبل کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں۔ اب ہم نا اس اسما کا ایک جائزہ لیں گے، انالائز کریں گے اس کو، کہ وہ جو ابھی تک ہم نے ٹاپک پڑھے ہیں جنس، عدد، وسعت، اس کے اعتبار سے ہم اس کو پورا انالائز کریں گے، اس پر غور کریں گے کہ کیا ہے اسم، ٹھیک ہے۔ ابھی تک جو ہم اسم پڑھ رہے تھے اس میں ہم آخری لیٹر کو یعنی اس کی حرکت کو ہم پروناؤنس نہیں کر رہے تھے، ہے نا۔ کلیمتن تھا، گولتا تھا تو ہم پڑھ رہے تھے کلمہ، ہے نا، ایسے ہم پڑھ رہے تھے۔ غاشیہ، آنیہ، یعنی لاسٹ کے
जो आखिरी जो लेटर है उसकी हरकत को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे थे, तो वक्फ करने की सूरत में लास्ट का जो लेटर होता है उसकी हरकत को हम नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक हम इंशाल्लाह इसको तफसील से पढ़ने से पहले अल-गाशिया, पहला क्या है? अल-गाशिया। इसमें क्या क्या मौजूद है? इसमें अलामत, यहाँ पर देखें आपको कैसे यहाँ पर टेबल सेट किया गया है। पहले पूरे कंप्लीट अस्मा यहाँ पर लिखे गए। सेकंड अलामतें जो उसी अस्मा में मौजूद हैं। थर्ड उसके माने यहाँ पर सेट किए गए। फोर्थ जो हम पढ़े थे ना जिन्स अदद औसत, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज किया गया, यानी औसत को पहले रखा गया और जिन्स को बाद में, टेबल में थोड़ा सा चेंज किया गया। तो अल गाशिया, गाशिया का मतलब क्या है? ढांपने वाली, छा जाने वाली, यानी ये क्या है? क़ियामत का एक मंजर है वो, ठीक है। अब गाशिया का मतलब ढांपने वाली है, छा जाने वाली है, तो इसको अलिफ लाम दाखिल करके क्या किया गया? इसको खास कर दिया गया। खास ढांपने वाली, खास छा जाने वाली इसका मुराद, यानी इसलिए अल गाशिया को हम जिन्स अदद और वसत के एतबार से एनालाइज करेंगे। कि हम यहाँ तरतीब में जो तब्दीली की है वो अभी मैंने आपको बताई है कि वसत पहले आ गया, अदद बाद में आ गया और जिन्स लास्ट में। तो अब हम एनालाइज करते वक्त क्या करेंगे? सबसे पहले वसत को देखेंगे। अब जो अल गाशिया है, ठीक है, अल गाशिया वसत के लिहाज से मारिफा है। कैसे पता चला? इसमें अलिफ और लाम मौजूद है। मारिफा की अक़साम में से जो मारुफ बिल लाम वाली जो किस्म है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अदद के एतबार से क्या है? ये अदद के एतबार से वाहिद है। इसके माने तो हमारे सामने है, जो क़ियामत इसका एक नाम है ना। हम इसको वाहिद कैसे पहचान रहे हैं? इसको अगर आप गौर करें तो अगर आप ये मुसन्ना होता तो यहाँ पर क्या होता? आनी या फिर ऐनी साउंड आता। अगर जमा सालिम मुज़क्कर होता तो या ऊना आता या फिर ईना आता। अगर जमा मुकस्सर होता तो फिर तनवीन आती, है ना। तो यहाँ पर वो भी नहीं है, तो इसका मतलब वाहिद इसमें है। अब ये मोनस है नहीं है, कैसा पता चलेगा? ये आखिर में गोलता है, और गोलता क्या है? मोनस की अलामतों में से एक अलामत है, तो इसलिए ये मोनस इसमें है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? आखिर देखिए, नेक्स्ट देखिए, वुजूहुन। वुजूहुन क्या है? ये वसत के अच्छा, यहाँ पर भी क्या नजर आ रहा है आपको? वुजूहुन में तनवीन नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये इस्म है। इस्म की अलामत आपको जाहिर हो गई। अब वसत के एतबार से नकीरा, अदद के एतबार से नकीरा, और अदद के लिहाज से जमा मुकस्सर। और अच्छा, ये जमा मुकस्सर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वजूह की जो वाहिद है वो वजह है। वजूह की वाहिद क्या है? वजह है। अगर ये सालिम होती तो ऊना या ईना का साउंड आता, तो इस तरह से हमने इसको क्या मालूम हो गया हमको कि ये जमा मुकस्सर है। ठीक है, जमा सालिम नहीं है, मुज़क्कर है। जमा मुकस्सर है और मुज़क्कर है। अगर जमा मुकस्सर की अगर आप देखें कि जमा अगर हम देखें, यानी अगर इसकी मोनस होती तो हमें क्या मिलता? आत का साउंड आता, है ना। जमा मोनस अगर होता तो वो आत का साउंड आता, और जमा सालिम होता तो ऊना और ईना का साउंड आता। तो ये दोनों भी नहीं है, तो इसका मतलब ये मुज़क्कर है, जमा मुकस्सर है। ठीक है, खाशियतुन में आप देख लें, गोलता है, तनवीन दोनों मौजूद हैं। ये इसकी अलामत आपके सामने नजर आ गई, मतलब है झुकने वाली। झुकने वाली, अब क्योंकि दो पेश मौजूद है तो इसका मतलब ये नकीरा है, और फिर ये वाहिद इसमें है। अब गोलता की वजह से ये मोनस आप डिक्लेयर कर चुके हैं। इसी तरह आमिलतुन, यहाँ भी तनवीन है, गोलता है, माना क्या है? अमल करने वाली। वसत के एतबार से नकीरा हुआ, वसत के एतबार से नकीरा, अदद के एतबार से वाहिद, और जिन्स के एतबार से मोनस। ठीक है, इसी तरह नासिबा। नासिबा का मतलब है थकने वाली, तनवीन और गोलता मौजूद है, थक जाने वाली, और ये भी नकीरा है, वाहिद है और मोनस है। इसी तरह नारन, नारन में भी दो ज़बर है, तो यहाँ पर तनवीन मौजूद है, तो इसका मतलब ये इसमें है, इसका माना है आग, और ये दो ज़बर मौजूद है, नकीरा, और ये वाहिद है, मोनस है।
हामियतुन, ये भी तनवीन और गोलता है, इंतहाई गर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है हामियतुन को, ये भी नकीरा है और वाहिद इसम है और मोनस है। आइनिन तनवीन, यहाँ मौजूद है दो ज़ेर, आइनिन के साथ दो ज़ेर मौजूद है यानी तनवीन मौजूद है, तो ये अलामत यहाँ मालूम हो गई। इसका मतलब है चश्मा। आइन का मतलब चश्मा भी होता है और आइन का मतलब आँख भी होता है, ठीक है। तो नकीरा इसम है, वाहिद है और मोनस है। आनियतिन एक सिफत है, ये खोलने वाली नहीं है, खौलने वाली, जैसा पानी खौलता है ना, खौलना एक सिफत, बहुत इंतहाई शदीद गर्म, खौलना। और नकीरा है, वाहिद है और मोनस है। तामुन, यहाँ भी तनवीन नज़र आ रहा है, तनवीन तामुन का मतलब खाना है और ये भी नकीरा है, वाहिद है और मुज़क्कर है। इसी तरह दरीइन तनवीन है। अच्छा, मैंने आपको क्या कहा था कि वाहिद और मुसन्ना जमा को देखना है, वसत के लिहाज से मारिफा और नकीरा को देखना है, मारिफा की अक़साम को यहाँ पर डाल के देखना है, फिर डिक्लेयर करना है कि वो नकीरा है या नहीं है। तो मारिफा की हम अक़साम क्या क्या देखे थे? अस्मा, एक तो अलम देखे जो ज़रिए खारदार घास है, तनवीन नज़र आ रही है, अलम नहीं है, और अस्मा इशारा, अस्मा ज़मायर ये भी नहीं है, है ना। तो फिर ये इसमें अलिफ लाम भी नहीं है, मौरफ बिल लाम भी नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये नकीरा हुआ, ठीक। जो इन तनवीन यहाँ पर मौजूद है और इसका मतलब भूख है और नकीरा है, वाहिद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अभी तक ये सारी चीज़ें हमने देखी। सूरह गाशिया की 7 आयात में हमें 12 अल्फाज हम लोग पहचान लिए। इसम के तौर पर इसम की 3 अलामतों के ज़रिए हमने पहचाना, और इन अस्मा में एक इसम मारिफा है और बाकी सब नकीरा है। आपने गौर किया इस बात को? देखें 3 टेबल को एक साथ देखिए आप, सिर्फ एक इसम ही मारिफा है, बाकी के सारे नकीरा है ना, बाकी सारे नकीरा है। और एक इसम जमा है और बाकी सारे वाहिद है। कहाँ गया जमा? ये देखिए ये वाला, बाकी सारे के सारे वाहिद है। अब इन बातों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि ये बातें बाद में बहुत काम आने वाली हैं आपको। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं? इसम का चौथा पहलू, इसम का एराब हम आज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो एराब है, ये हमारी उर्दू ज़बान में ज़ेर ज़बर पेश को एराब कहते हैं, लेकिन जो आज का टॉपिक जो हम इसम का एराब हम पढ़ रहे हैं, ये एराब अंग्रेज़ी के लिहाज से ये स्टेटस कहलाता है। बस इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा उसके डीप में नहीं जाना है। एराब को इंग्लिश में स्टेटस कहते हैं बस, क्योंकि अरबी की तरकीब में जब भी कोई इस्म इस्तेमाल होता है या फिर होगा, वो किसी न किसी हालत में इस्तेमाल होगा, यानी उसका कोई ना कोई स्टेटस ज़रूर होगा। इस्म का स्टेटस ही अरबी में एराब कहलाता है, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से जहन में रख लें कि एराब अरबी ज़बान के लिए ख़ास है, ना तो ये उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है और ना ही अंग्रेज़ी ज़बान में एराब होता है। इसलिए अरबी ज़बान के हवाले से इसको हमें समझना है। यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश को यहाँ पर हम बीच में नहीं लाएंगे, ठीक है। अब इस बात को अच्छे से जहन नशी करें। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। एराब क्या है? असल में इस्म की हालत। अब इस्म की हालत क्या है? हर लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर जो आखिरी हर्फ को हम पढ़ेंगे ना, आखिरी हर्फ पर जो हरकत होगी वो हम पढ़ेंगे। अभी तक हम नहीं पढ़ रहे थे उसको। जैसे मुसन्ना, हम कुछ ही अस्मा के आखिर को हम पढ़ रहे थे। जैसे मुसन्ना का इस्म था तो मुस्लिमानी, मुस्लिमतानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमतैनी, ये आखिरी हर्फ को ये पढ़ रहे थे कुछ इसी अस्मा को, यानी सिर्फ मुसन्ना और जमा मुज़क्कर सालिम को ही हम पढ़ रहे थे। जमा मुज़क्कर सालिम में हम क्या पढ़े? मुस्लिमूना, आखिरी टर पर नून पर ज़बर है जो हम पढ़ रहे थे। मुस्लिमीना, यहाँ पर ऊना और ईना का साउंड वाज़े हो रहा है। यहाँ आनी और ऐनी का साउंड है और ये ऊना और ईना का साउंड है। यही हमें नज़र आ रहा था, अभी तक हम यही पढ़े, ठीक है। जमा सालिम मोनस, उसमें क्या आ रहा था? आत का साउंड आ रहा था। उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? आत को यहाँ पर भी हम लास्ट पे जेर या ज़बर या पेश लगा कर नहीं पढ़े, यहाँ पर भी हमने लास्ट लेटर को रोक दिया था। यहाँ कुछ भी नहीं लगाया हमने, है ना, ये हम यहाँ पर रोक दिए थे।
तो अभी तक हमने जितने अस्मा पढ़े उसमें वाहिद अस्मा, मुसन्ना अस्मा, जमा सालिम मुज़क्कर और जमा सालिम मोनस अस्मा पढ़े। और जमा मुकस्सर अस्मा पढ़े, उनमें 2 अस्मा ऐसे हैं जिनमें से हमने मुकम्मल तौर पर उनको फिनिश नहीं किया, यानी उनकी फिनिशिंग नहीं की, या फिर आप बोलें तो उनको डेकोरेट नहीं किया, या फिर आप ये कहें कि हमने उसको मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ा, यानी आखिरी लेटर, आखिरी आवाज़, जो आखिरी लेटर पर जो हरकत होती है उसको हमने नहीं पढ़ा। मुसन्ना और जमा सालिम मुज़क्कर को ही हमने पढ़ा था, जो आखिरी लेटर की हरकत के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अब बाकी जो अस्मा है वाहिद है और जमा मुकस्सर है, ठीक है, और जमा सालिम। अब 3 यहाँ पर हमें बचे हुए। एक, वाहिद इसम के आखिर के लेटर पर कोई हरकत हम लगाकर नहीं पढ़े। इसी तरह जमा मुकस्सर के आखिरी लेटर पर हमने कोई हरकत नहीं लगाई, है ना। और फिर जमा सालिम मोन्नस, इसके भी आखिरी लेटर पर हमने कोई हरकत नहीं लगाई या कोई साउंड नहीं था। तो आज हम इंशाल्लाह इस साउंड को हमने आज कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई इस्म आखिरी लेटर पर कोई हरकत हो तभी वो इस्म कंप्लीट होता है। कंप्लीट ही नहीं था, हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया ही नहीं था। जैसे हमने मरियम था तो हमने आत लगाया, मरियमात पढ़ा, फातिमा था तो फातिमात पढ़ा। और जमा मुसन्ना यानी मुसन्ना मुज़क्कर हो या मोनस, आनी और ऐनी, और जमा सालिम मुज़क्कर में ऊना और ईना को हमने इस्तेमाल किया था। जब किसी भी इस्म के आखिर में कोई हरकत आ जाए तो वो इस्म कंप्लीट होता है। तो आज का लेसन हमारा क्या है, एराब है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम वाहिद इस्म और जमा मुकस्सर इस्म के आखिरी हर्फ पर कोई ना कोई हरकत हम लगाएंगे इंशाल्लाह। अब हम एराब इसलिए लगाएंगे क्योंकि उस इस्म का इबारत में कोई ना कोई हालत ज़रूर होगी, यानी एराब ज़रूर होगा। जिस तरह से इस्म जिन्स के लिहाज से मुज़क्कर और मोन्नस होता है, अदद के लिहाज से यानी 3 तरह का था ना, वाहिद, मुसन्ना और जमा था, और वसत के लिहाज से 2 तरह का था, मारिफा और नकीरा था। तो आप यहाँ पर आप नोट कर लें कि अरबी ज़बान में इस्तेमाल होने वाला कोई भी इस्म एराब के लिहाज से 3 तरह का होता है, ठीक है, 3 तरह का होता है। क्या होता है वो मरफू होता है, मंसूब होता है और मजरूर होता है। अब यहाँ पर वाहिद इस्म का यहाँ पर एक आप देख लें कि वाहिद इस्म का हम क्या पढ़े थे, रजुल, है ना, मुज़क्कर रजुल और इम्राअह पढ़े। यहाँ हमने इसको कोई हरकत नहीं दी। जमा मुकस्सर देखें, रिजाल, निसा, और जमा सालिम मोनस के लिए मोमिनात पढ़े, लेकिन यहाँ पर हम आखिर में कोई हरकत नहीं दिए थे। अस्मा को यानी हर इस्म के वाहिद, जमा मुकस्सर और जमा सालिम मोनस को आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, यानी आखिरी लेटर पर कोई ना कोई हरकत देंगे। और वो क्या होगी अब वो हम आपको बता रहे हैं। इस्म एराब के लिहाज से 3 तरह का होता है, मरफू होता है, मंसूब होता है और मजरूर होता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। अरबी इबारत में इस्म या तो हालत रफ़ा में होता है, हालत नसब में होता है, या हालत जर में होता है। हालत रफ़ा में होने की वजह से उसको मरफू कहते हैं, हालत नसब में जो इस्म होता है उसको मंसूब कहते हैं, और हालत जर में जो इस्म होता है उसको मजरूर कहते हैं, ठीक है। अब आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। अब आप बोल सकते हैं अभी अरबी ज़बान में किसी भी इस्म के 3 एराबी हालतें होती हैं, रफ़ा, नसब, जर। रफ़ा की हालत वाला इस्म मरफू कहलाता है, नसब की हालत वाला इस्म मंसूब कहलाता है, और जर की हालत वाला इस्म मजरूर कहलाता है। यहाँ तक आपको हर बात याद रखनी है, कोई चीज़ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए अब फिर हम इस आयत को हम चेक करते हैं। यानी हम ये क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अगर मुसन्ना इस्म हालत अगर रफ़ा में है यानी मरफू है तो फिर वो कैसे दिखेगा। अगर जमा सालिम है कोई इस्म, अगर वो मंसूब है या मजरूर है या मरफू है तो वो देखने में कैसे होगा, जमा मुकस्सर है। तो अगर कोई इस्म जमा मुकस्सर है तो फिर वो मरफू हालत में कैसे होगा, मंसूब हालत में कैसे होगा, मजरूर हालत में कैसे होगा, ये सब कुछ हमें देखना है। तो आज के लेक्चर में हम वाहिद और जमा मुकस्सर के एराब को पढ़ेंगे। तो यहाँ देखें, इसको सामने लाते हैं। तो ये जो सूरह गाशिया में हमने अभी क्या देखा, इसमें सिर्फ 2 तरह के अस्मा ही आपके सामने आए। अदद के एतबार से
صرف واحد آیا اور نمبر 2 پہ جمع مکسر آیا. ٹھیک ہے، ایک واحد اسم ہے، دوسرا جمع مکسر اسم آیا، اور جنس کے اعتبار سے جو اسما تھے وہ مذکر آئے یا پھر مؤنث ہے، اور وہ بھی 2 طرح کے اسما موجود ہیں، اور وسعت کے لحاظ سے ایک اسم معرفہ تھا اور باقی تمام نکرہ تھے. تو اب ایک اور بار آپ اس ٹیبل پر نظر ڈالیں. غاشیہ میں آپ کے سامنے کیا نظر آ رہا ہے؟ الف اور گولتا موجود ہے. قیامت کا نام معرف ہے، یعنی یہ معرفہ ہے کیونکہ الف لام آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، واحد ہے اور مؤنث ہے. ہم بار آپ کو یہاں پر بتانے کے لیے یہ ساری چیزیں ابھی ہم آپ کو بتائیں، بس یہ ٹیبل کے لحاظ سے ایک اور بار آپ کو سمجھا رہے ہیں. وہاں پر ہم اسم کے لحاظ سے دیکھ رہے تھے، ہے نا. اب یہاں پر آپ دیکھیں الغاشیہ، تو یہاں پر الف لام موجود ہے. الف لام ہے، گولتا ہے، قیامت کا نام ہے، معرفہ ہے، واحد اسم ہے اور مؤنث ہے. اب باقی سارے نکرہ، یہاں پر واحد ہے اور یہاں مؤنث ہے، تو یہاں پر صرف 2 ہی ہے وجوہ، یہ جمع مکسر ہے اور مذکر ہے، بس باقی کے سارے سیم ہے. دیکھیں یہاں پر واحد ہے، یہ پورے نکرہ ہے، یہاں پر 3 مؤنث ہے اور 3 مذکر ہے. ان کو آپ دیکھیں. اب اس کو ہم الگ الگ کرتے ہیں اور پھر آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہاں پر دیکھیں تو اسما یہاں پر ہے خاشعۃن، عاملۃن، ناصبۃن، طعامن. تو یہاں پر سارے کے سارے 2 پیش والے ہیں، ہے نا. یہ سارے کے سارے واحد بھی ہیں عدد کے لحاظ سے. اور نارن، ٹھیک ہے، یہ بھی واحد ہے. یہاں 2 زبر ہے، یہاں 2 پیش ہے، یہاں 2 زبر ہے اور یہاں 2 زیر ہے. ٹھیک ہے، تو نارن اور حامیتن واحد اسم ہے اور 2 زبر کے ساتھ ہے، یعنی یہ منصوب اسم ہے، یہ مرفوع ہے اور یہ منصوب ہے. یہاں 2 زیر ہے تو اس کا مطلب یہ مجرور ہے، واحد اسم ہے اور مجرور ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم میں جب بھی واحد اسم اور جمع مکسر اسم یہ دونوں کے اعراب سیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، واحد اسم اور جمع مکسر اسم یہ دونوں کے اعراب سیم ہوتے ہیں. ہم نے اب آیت کے جو اسما تھے اس کو آپ کے سامنے لایا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں جو اسم رفع یعنی 2 پیش والا ہوتا ہے اس حالت کو مرفوع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو 2 زبر ہوتا ہے یہ نصب کہلاتا ہے. 2 زبر یعنی نصب. جب بھی یہ جس اسم پر ہوتا ہے وہ اسم منصوب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، 2 زیر والا جو اسم ہوتا ہے اس کو 2 زیر یعنی جر، تو یہ اسم مجرور کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے واحد اسم ہے لیکن ہم نے اس کو الگ الگ کیوں کیا؟ 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر، ان کو الگ الگ کیا اور آپ کو بتایا کہ یہاں پر 2 زبر ہے، 2 پیش ہے، تو پھر وہ رفع حالت میں ہے اور وہ کیا ہے؟ مرفوع کہلاتا ہے. نصب حالت میں ہے تو منصوب کہلاتا ہے، اور اگر زیر یعنی جر ہے تو پھر وہ مجرور کہلاتا ہے. سمجھ آیا؟ اب ہم آتے ہیں واحد اسم اور جمع مکسر دونوں کے رولز سیم ہیں، دونوں کے اعراب سیم ہیں. تو یہاں پر ہم نے دیکھو مثال کے طور پر آپ کی اس آیت میں صرف وجوہن 2 پیش والا ہی آیا، تو یہ 2 پیش وجوہن یہ مرفوع حالت میں ہے، تو یہ جمع مکسر کیا ہے؟ مرفوع حالت میں ہے. تو اب اس کے یہاں پر نوٹس ہیں جو آپ کو بنانا ہے، نوٹ ہے لکھنا ہے کہ واحد اور جمع مکسر اسما چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو 2 پیش حرکت کے ساتھ مرفوع، 2 زبر حرکت کے ساتھ منصوب اور 2 زیر حرکت کے ساتھ مجرور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، واحد چاہے مذکر ہو یا مؤنث، جمع مکسر مذکر ہو یا مؤنث، اس اسما کے اعراب سیم ہوتے ہیں. اگزامپل کے طور پر دیکھیں ولد. ٹھیک ہے، اس پر یہاں پر دیکھیں آپ یہ چاروں کتنے 1 2 3 4 5 یہ 5 اسما میں بھی آخری لیٹر پر کوئی حرکت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ابھی تک اتنا ہی پڑھا تھا. ولد کا مطلب لڑکا،
बिंत का मतलब लड़की, रजुल का मतलब आदमी, इम्राह यानी औरत, माँ मतलब पानी। ठीक है, अब ये सारे के सारे वाहिद इसम हैं, अदद के लिहाज से ये सारे वाहिद हैं। अब वलद मुजक्कर है, बिंत मौनस है, रजुल मुजक्कर है, इम्राह मौनस है क्योंकि यहाँ गोलता मौजूद है, माउन ये मुजक्कर है पानी। ठीक है, अब हम इसको मरफू बनाएंगे। हमने आपसे क्या कहा था, जिस पर भी दो पेश होगी वो मरफू कहलाता है, यानी रफा हालत में। तो ये देखें यहाँ पर हमने सारे दो पेश यानी तनवीन लगाए, दो पेश लगाए तो फिर ये क्या बन गया, ये मरफू हालत में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये मंसूब पर दो ज़बर लगाए और मजरूर में दो ज़ेर लगाए कि दो ज़बर के साथ अलिफ होता है, दो ज़बर के साथ हमेशा अलिफ होता है। मंसूब, कोई इसमें अगर मंसूब होता है और वो दो ज़बर हो तो उसके साथ एक अलिफ मौजूद होता है। लेकिन यहाँ देखें ज़ेर में कुछ भी नहीं है, यानी मजरूर में जैसा है वैसा ही है और वाहिद में भी जैसा है वैसा ही है, बस ये एक अलिफ का इजाफा होता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अलिफ का इजाफा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये गोलता है, ये है एक्सेप्शन। हर कायदे का एक एक्सेप्शन होता है, तो फिर ये इस कायदे का ये एक्सेप्शन ये है कि गोलता के साथ अलिफ नहीं आता और फिर यहाँ पर भी नहीं आया। जहाँ पर अलिफ और हमजा हो वहाँ पर भी दो ज़बर के साथ अलिफ नहीं आता। इसी तरह समाउन, समाउन में भी देखें, माउन में भी नहीं आया, माउन माअन माइन। एक और एग्जाम्पल, समाउन समाअन समाइन। अब हम इसी तरह जमा, ये वाहिद इसमें की मिसालें थी ना सारी, अब हम यहाँ जमा मुकस्सर की देखेंगे। औलाद जमा मुकस्सर है, निसाउन जमा मुकस्सर है, कुतुब जमा मुकस्सर है और अनफुस नफ्स की जमा मुकस्सर। ठीक है, औलाद वलद की जमा मुकस्सर है, इम्राह ये निसा इम्राह की मुकस्सर है, कुतुब किताब की मुकस्सर है, किताब की जमा मुकस्सर है और नफ्स की जमा मुकस्सर अनफुस है। ठीक है, तो औलाद मुज़क्कर है, निसा मौनस है, कुतुब मुज़क्कर है और अनफुस मौनस है, नफ्स मौनस। इसको देखें, जब ये जमा मुकस्सर जब मरफू हालत में होता है, यानी आखिरी लेटर पर अगर कुछ हरकत देना है और ये मरफू हालत में हो तो दो पेश आता है, जैसे वाहिद आया था ये भी वैसे ही सेम है ना। और जमा मुकस्सर में जब हालत नसब में आता है तो दो ज़बर के साथ अलिफ मौजूद होता है, जैसे यहाँ पर हमने देखा था वलद का वलदन हुआ था, औलाद का औलादन हो रहा है। अब यहाँ निसाअन कैसे हुआ, यहाँ देखिए मैंने आपसे क्या बताया था कि अलिफ और हमजा मौजूद हो तो वहाँ पर दो ज़बर के साथ अलिफ नहीं आता, तो इसी तरह निसाअन में भी नहीं आया। कुतुबन यहाँ पर आया क्योंकि यहाँ पर अलिफ और हमजा नहीं है। अनफुसन यहाँ भी आ गया दो ज़बर के साथ अलिफ। अब इसकी मजरूर हालत सेम जैसे ये थी, औलादिन, निसाइन, कुतुबिन और अनफुसिन। तो वाहिद और जमा मुकस्सर अस्मा चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस, दो पेश हरकत हो तो मरफू, दो ज़बर हो तो मंसूब और दो ज़ेर हो तो मजरूर होता है। ये आपको नोट्स बनाने हैं। इसी तरह एक और भी अस्मा ऐसे हैं जो अलिफ और हमज़ा नहीं है। हमने ऊपर क्या देखा अभी, अलिफ और हमज़ा हो तो दो ज़बर के साथ अलिफ नहीं लगा रहे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अलिफ और हमज़ा नहीं है, ओनली सिर्फ हमज़ा है। ये कैसे अस्मा है, यहाँ पर सिर्फ हमज़ा है, तो फिर यहाँ पर सेम जुज़उन, सुउन, शैउन जैसे मरफू हालत में था। यहाँ पर चूँकि हमज़ा के साथ अलिफ नहीं है तो फिर हम इसके बाद दो ज़बर के साथ अलिफ को जोड़ेंगे, जुज़अन, सुअन, शैअन, शैअन। ठीक है, दो तरह से लिखा जाता है और ये हालत जर में हो तो फिर इस तरह से शैइन, इस तरह से जुज़इन, सुइन और शैइन। आपको इसकी अगर आपको मिसाल भी बताते हैं कि देखें यहाँ पर कुरान में सूरह ज़ुख़रुफ़ में है, यहाँ देखें वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़अन। देखें दो ज़बर और अलिफ मौजूद है, यहाँ पर हमज़ा है, दो ज़बर है और अलिफ है। ऊपर क्या था, अलिफ और हमज़ा था, इसीलिए दो ज़बर के साथ और एक अलिफ हम ऐड नहीं करें।
ہاں حمزہ پہلے ہے تو بعد میں الف لگا کر دو زبر لگائے. یہ ہے اس کی مثال قرآن کی آیت کے ساتھ. اسی طرح سوءن، یہاں بھی دیکھیں سوءن، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. سورۃ النساء آیت نمبر 11. اسی طرح شیئن اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے. تو یہاں دیکھیں شیئن، ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ کی آیت ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اب ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ یہاں پر ہم نے سب کے ساتھ دو زیر ہے یا پھر کہیں دو پیش ہے تو کہیں دو زبر ہے اور دو زبر کے ساتھ الف ہے نا. لیکن یہاں دیکھیں، اس کو آپ غور کریں، یہاں پر الف لام ہے اور یہاں پر دو زیر نہیں ہے. ہر جگہ دو زیر ہے اور یہاں پر نہیں ہے. اس کا ایک رول ہے، کوئی بھی اسما جن اسما کے آخر میں تنوین آتی ہے وہاں پر اس اسما کے شروع میں الف لام لگا دیا جائے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی اسم، اتنا یاد رکھیں کہ جب الف لام آتا ہے تو تنوین نہیں آتی، اگر تنوین آ جائے تو الف لام نہیں آتی. یہ دونوں کی پکی دشمنی ہے، اس بات کو اچھے سے یاد رکھیں. تنوین ہے تو الف لام نہیں آتا، الف لام ہے تو تنوین نہیں آتا. رجلن ہے، یہ واحد اسم ہے، اس پر جب ہم مرفوع حالت میں آ جائے یعنی رفع لگا دیں یعنی دو پیش لگا دیں تو یہ مرفوع ہوتا ہے. رجلن منصوب میں رجلن اور مجرور رجلین. اس کو اگر ہم الف لام لگا دیں تو یہ تنوین ختم ہو جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، دو پیش سے ایک پیش بچ جاتا ہے، دو زبر سے ایک زبر بچ جاتا ہے، تو پھر الف بھی نہیں ہے نا. جب دو زبر ہے تبھی الف آتا ہے. اب دو زبر جب ختم ہو گئے، ایک ہی زبر ہے تو پھر الف بھی ختم ہو گیا. الرجل، الرجلی، رجل، رجلن ہے، دو زیر ہے تو پھر الف لام آ گیا تو ایک زیر بچ گیا، دو زیر میں سے ایک زیر ہٹ جائے گا. رجالن، یہ جمع مکسر، رجالن، 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 رجالن. تو پھر کیا بن گیا، الرجالو، الرجالا، الرجالی. عین سے عینن، عینن، العینو، العینا، العینی. ٹھیک ہے، منصوب اور مجرور. عیون سے عیونن، دو زبر اور الف ہے لیکن یہاں پر دو زبر نہیں ہے اس لیے الف بھی چلا گیا. العیون، العیونی. اور ہم نے آپ کو دیکھیں یہاں پر آپ کا دو زبر کے ساتھ الف، یہ آپ کا اگزامپل تسلا نارن حامیہ. تو میں نے آپ سے کیا بتایا تھا، آپ کو دو زبر کے ساتھ الف آتا ہے. تو دیکھیں اسی آیت میں آپ کو یہ چیز مل گئی. تو اس کا مطلب ہم ابھی تک جو بھی پڑھے وہ سارا کا سارا الحمدللہ ہم نے سچ پڑھا ہے نا، صحیح پڑھا ہے. جو آپ کو قرآن کے آیتوں کے ذریعے ہم نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی ہیں. تو آج کے لیکچر میں الحمدللہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ قرآن مجید تلاوت کرتے ہوئے کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر تنوین نظر آ جائے تو پہلی بات یہ کہ وہ اسم ہے، دوسری بات یہ کہ وہ عدد کے لحاظ سے واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے یعنی سالم ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے یا جمع مکسر ہے، سب آپ اس کا پہچان سکتے ہیں. اس کے اعراب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو پیش ہے تو مرفوع، دو زبر ہے تو منصوب اور دو زیر ہے تو مجرور. دو زبر کے ساتھ الف بھی ہوتا ہے. اگر صرف دو زبر ہے تو اس کا مطلب یہاں پر وہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ گول تا پر اینڈ ہوتا ہے نا. یا پھر وہ لفظ آخر میں الف اور حمزہ دونوں ساتھ میں ہوتے ہیں تو پھر دو زبر دو زیر دو پیش ہوتا. تو انشاءاللہ تعالی عزیز الحمدللہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی. اگلے ہم واحد اور جمع مکسر کے حوالے سے ایک اور اہم بات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں. انشاءاللہ مثنیٰ اور جمع کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، یعنی اس کے اعراب کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. آج کی کلاس کا ہمیں خلاصہ ہم آپ کے سامنے ایک مرتبہ پیش کر دیتے ہیں کہ آج ہم نے اس اسم کے چوتھے پہلو یعنی اعراب کو پڑھنا شروع کیا ہے. اعراب عربی زبان کے ساتھ خاص ہے، اردو انگریزی میں اعراب نہیں ہوتے، لہٰذا اعراب کو
عربی زبان کے حوالے سے سمجھنا ہے۔ اعراب اصل کسی بھی اسم کے آخر میں کوئی نہ کوئی حرکت نظر آتی ہے۔ کچھ حرکات آوازوں کے ساتھ یعنی آنی اور عینی مثنیٰ میں، اور جمع سالم مذکر میں اونا اور عینا کے ساتھ، اور ان آوازوں کے بغیر بھی کچھ حرکات ہوتے ہیں، یعنی باقی واحد ہے، جمع مکسر کے اعراب ہے نا، یہ سیم ہوتے ہیں، واحد اور جمع مکسر کے اعراب سیم ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم 3 طرح کا ہوتا ہے اعراب کے لحاظ سے: مرفوع، منصوب، مجرور۔ واحد اور جمع مکسر کے اسماء کے آخر میں 2 پیش ہو تو مرفوع، اگر 2 زبر ہو تو منصوب، اور 2 زیر ہو تو مجرور کہلاتا ہے۔ الحمدللہ آج کی کلاس ہماری مکمل ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔